अरे संदीप, खुराना जी के बारे में सुना? क्या हुआ खुराना जी को? ठीक तो थे? अरे वो काफी बीमार थे, कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, अब घर आ गए हैं। उनके परिवार वाले बता रहे थे कि लाखों रुपए खर्च हो गए। आजकल हॉस्पिटल कितने महंगे हो गए हैं यार। हाँ यार, वो तो है, पर अब इंडिया में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं आ गई हैं, तो इलाज का खर्च तो बढ़ेगा ही ना। ये बात तो है। मुझे तो लगता है हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनियां अच्छा पैसा बना रही होंगी। संदीप भाई, इस सेक्टर से कोई अच्छा शेयर बताओ ना जिसमें निवेश किया जा सके। हाँ यार चंपक, वैसे तो हॉस्पिटल सेक्टर में कई अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी नज़र हमेशा डार्क हॉर्स यानी कि जो छुपे रुस्तम शेयर होते हैं उन्हीं पे ही रहती है। और इस स्पेस में यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर में एक ऐसा ही शेयर है शेल्बी लिमिटेड। इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। ભારતીય હેલ્થકેર ઇન્ડસ્ટ્રી ઘણી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે। એશિયા અને પશ્ચિમ દેશોની સરખામણીમાં એફોર્ડેબિલિટીના પગલે માંગ વધી છે। આ ઉપરાંત સરકારની પોલિસીના સપોર્ટ અને હોસ્પિટલ ચેઇન્સ તરફથી એગ્રેસિવ કેપેસિટી એડિશનના પગલે સેક્ટરમાં ઘણી તેજી આવી છે। FY16 FY22 દરમિયાન ઇન્ડિયન હેલ્થકેર સેક્ટરે 14 થી 15% CAGR ગ્રોથ રજીસ્ટર કર્યો છે। તો FY25 સુધી દેશની લીડિંગ હોસ્પિટલ ચેઇન્સની બેડ ક્ષમતા 30% વધવાનું અનુમાન છે। ફાઇનાન્શિયલ યર 24 સુધી હેલ્થકેર ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું કદ $130 અબજ થવાનું અનુમાન છે। આવું અનુમાન એટલે લગાવાઈ રહ્યું છે કે હોસ્પિટલ ચેઇન્સ ક્ષમતા વિસ્તાર કરી રહી છે। સાથે જ સારા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પેનિટ્રેશનથી હેલ્થકેર સેક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધી રહ્યું છે। એટલું જ નહીં, પબ્લિક અને પ્રાઇવેટ હેલ્થ ખર્ચ પણ સતત વધી રહ્યો છે। આ બધાનો ફાયદો હોસ્પિટલ્સ ચલાવનારી કંપનીઓને થશે, કારણ કે હેલ્થકેર સેક્ટરમાં હોસ્પિટલ્સનો 60 થી 70% હિસ્સો હોય છે। હેલ્થકેર સેક્ટરમાં થઈ રહેલા ફેરફારોથી ઘણી કંપનીઓને મોટો ફાયદો થવાની સંભાવના છે। આવી જ એક કંપની છે શેલ્બી લિમિટેડ। यार मैं तो नहीं जानता ज़्यादा इस कंपनी के बारे में, इसके कारोबार के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ यार बताता हूँ, सब बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। तो શેલ્બી અમદાવાદની અગ્રણી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ચેઇન છે। આ ચેઇન ઓર્થોપેડિક્સ, કોમ્પ્લેક્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ, કાર્ડિયોલોજી, ન્યુરોલોજી જેવી ઘણી હેલ્થકેર સેવાઓ આપે છે। ડોક્ટર વિક્રમ શાહ કંપનીના પ્રમોટર છે, જેને US, UK અને ભારતમાં 28 વર્ષથી વધુનો મેડિકલ અનુભવ છે। ડોક્ટર શાહ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે। અંદાજે 2012 બેડની કુલ ક્ષમતાની સાથે આ કંપનીએ ઓર્થોપેડિક સર્જરીની નિપુણતા ડેવલપ કરી છે। હેલ્થકેર સર્વિસીસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ કંપનીની વેસ્ટર્ન અને સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયામાં મજબૂત માર્કેટ પોઝિશન છે। અત્યાર સુધી 1.41 લાખથી વધુ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી સાથે શેલ્બી ભારત અને દુનિયામાં સૌથી મોટી સ્પેશિયલિસ્ટ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ પ્રોવાઈડરમાંની એક છે। દર વર્ષે કંપની એવરેજ 10 થી 12,000 સર્જરી કરે છે। આજે જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરીમાં શેલ્બીનો માર્કેટ શેર 5% અને પ્રાઇવેટ હેલ્થકેર પ્લેયર્સમાં 15% છે, જે હાઈએસ્ટ છે। આ ઉપરાંત કંપની કાર્ડિયોલોજી, ન્યુરોલોજી, ઓન્કોલોજી, બેરિયાટ્રિક્સ, લીવર અને રીનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જેવી ટર્શરી અને ક્વાર્ટરી સ્પેશિયાલિટીઝમાં હાજરી ધરાવે છે। શેલ્બી અમદાવાદ ઉપરાંત બીજા વિસ્તારો અને ખાસ કરીને નાના શહેરોમાં પણ વિસ્તાર કરવા જઈ રહી છે, પરંતુ શરૂઆતી તબક્કામાં દિલ્હી, NCR, કોલકાતા, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને આસામ પર કંપનીનું ફોકસ રહેશે। ठीक है, ये मान लिया कि कंपनी का कारोबार मजबूत है, लेकिन अभी यह मुनाफे में है या घाटे में? इसका वैल्यूएशन या आउटलुक कैसा है, ये भी तो बताओ। मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो, જો ત્રિમાસિક પરિણામો પર નજર કરીએ તો FY23 ના પહેલા 9 મહિનામાં કંપનીએ 605 કરોડ રૂપિયાની આવક અને 53.7 કરોડનો નફો કર્યો છે। આધારે FY23 માં 805 કરોડ રૂપિયા, FY24 માં 950 કરોડ રૂપિયા, FY25 માં 1,159 કરોડ રૂપિયા આવક થયાનું અનુમાન છે। આ જ રીતે શેલ્બીને FY23 માં 79 કરોડ રૂપિયા, FY24 માં 101 કરોડ રૂપિયા અને FY25 માં 135 કરોડ રૂપિયા નફો થવાની આશા છે। શેલ્બીની EPS એટલે કે પ્રતિ શેર કમાણી FY23 માં 7.35 રૂપિયા, FY24 માં 9.3 રૂપિયા અને FY25 માં 12.5 રૂપિયા રહી શકે છે।
જો વેલ્યુએશનની વાત કરીએ તો સેલ્બીનું માર્કેટ કેપ અંદાજે 1460 કરોડ રૂપિયા છે અને ફાઇનાન્શિયલ યર 24 અને ફાઇનાન્શિયલ યર 25ના અંદાજિત EV અપોન એબિટડાના આધારે શેર 9 ગણા અને 7 ગણાના મલ્ટિપલ ઉપર કારોબાર કરી રહ્યો છે. 168 રૂપિયાની 52 સપ્તાહની ટોચથી આ શેર અંદાજે 20% અને એક મહિનામાં અંદાજે 12%નો ઘટાડો દર્શાવી ચૂક્યો છે. देखिए, इंडिया में अस्पताल का जो प्रेजेंस है 60 to 70% जो अभी हेल्थ केयर का जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें 60-70% हॉस्पिटल्स का बिजनेस शेयर होता है. काफी हॉस्पिटल्स अभी स्पेशलिटीज में आ रहे हैं, फार्मेसी भी चला रहे हैं. सबसे बड़ी बात, जो भी नया हॉस्पिटल होता है उसको ब्रेक इवन होने के लिए मिनिमम 2-3 साल लगते हैं. तो मुझे लग रहा है कि आउटलुक बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इंडिया का मार्केट अगर हम दूसरे ग्लोबल कंट्री से कंपेयर करें तो यहाँ पे हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे नॉट ओनली स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार के स्पेशलिटी शैल्बी में काम कर रहा है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया. अगले 3-5 साल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई डिमांड की दिक्कत होगी. स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना ऑक्यूपेंसी लेवल कैसे बढ़ाते हैं, इससे काफी इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स मार्केट भी देखना चाहेगा. बट ओवरऑल हेल्थ केयर कम से कम 15-20% अगले 3-4 सालों के लिए ग्रो करेगा, ऐसा मेरा अनुमान. आज फिर संदीप भाई तुम सब अच्छी बातें ही बता रहे हो. इस सेक्टर या कंपनी के लिए चैलेंज क्या है ये भी तो बताओ. अरे चंपक मेरे भाई, ज़रूर बताऊंगा. तुम्हें पता है ना, मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ. और हमेशा की तरह किसी भी कंपनी या कारोबार का चुनाव करने से पहले चुनौतियों को जानना बेहद अहम है. ध्यान से सुनना और समझ भी लेना. देखिए, पहली बात तो शैल्बी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिनके 11 हॉस्पिटल्स है. इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और दिक्कत जो मुझे अभी लग रही है वो बेसिकली इनका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 2-3 साल से किया है. ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल अगर बढ़ती है तो ही इनको बेनिफिट ऑपरेटिंग लेवरेज का मिलेगा, इनका मुनाफा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नए हॉस्पिटल है जो 5 साल के नीचे वाले हैं, वहां पे अभी भी हमने देखा है कि ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं है. तो जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल यहाँ पे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इनको कामकाजी मुनाफा भी इनका बढ़ेगा. तो ये सबसे बड़ी चैलेंज शैल्बी के लिए है कि कितना जल्दी वो अपने नए हॉस्पिटल्स को प्रॉफिटेबल बनाते और ओवरऑल अपनी ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ाए, जिससे कंपनी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आउटलुक अच्छा रहेगा. चलो ये समझ में आ गया कि शेयर अच्छे भाव पर मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें पैसा लगाऊं तो आगे इसमें कितनी बढ़त की संभावना है? एक्सपर्ट ने इसके लिए कुछ टारगेट बताए हैं क्या? बताए हैं ना यार, क्यों नहीं बताए हैं. देखो, कारोबार में डोमिनेंस, आकर्षक प्रॉफिट मार्जिन और वेल स्प्रेड हॉस्पिटल्स के चलते आगे शेयर को 10 से 12 गुना के EV बाय EBITDA मल्टीपल मिल सकते हैं. फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड में स्थिरता, मजबूत प्रोडक्ट डोमेन और अच्छे प्रमोटर्स के चलते शैल्बी के शेयर की री रेटिंग होने की संभावना है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि शैल्बी के शेयर को 136 रुपए के मौजूदा स्तर के आसपास खरीदा जा सकता है. अब जरा टारगेट भी जान लो. देखिए, अगले 1.5 से 2 साल के लिए हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल शैल्बी ने एस्टेब्लिश किया है, इनके पास 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, प्लस अभी 2 नए हॉस्पिटल्स मुंबई एज वेल एज नासिक में आने वाले हैं, प्लस इनके पास एडिक्वेट बेड कैपेसिटी है. तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए बहुत अच्छी जगह है. ज्यादा कैपेक्स नहीं लगेगा और कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किए. तो मेरा अनुमान है अगले 1.5-2 सालों में ये कंपनी का जो टारगेट प्राइस हमारे अनुमान से करीबन 220-225 होना चाहिए. हमारा वैल्यूएशन का जो मेट्रिक है वो EV टू EBITDA का है. इस कंपनी को करीबन 7 या 8 का EV टू EBITDA मिलता है. ऐसी कंपनी को हमको लग रहा है कम से कम 10 से 12 टाइम का EV टू EBITDA कंफर्टेबली मिलना चाहिए. तो उस हिसाब से 220-225 हमको लग रहा है अगले 1.5-2 साल में ये टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है. तो देखा तुमने चंपक, देश में इलाज का खर्च भले ही बढ़ रहा है, लेकिन निवेश के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ा अवसर भी है. कभी क्लिनिक और नर्सिंग होम तक सीमित रहने वाले सेक्टर में अब बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेवाएं दे रहे हैं. हेल्थ केयर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट आ रहे हैं और शेयर बाजार के जरिए आम निवेशकों को भी ऐसी कंपनियों में निवेश का फायदा मिल रहा है. हाँ संदीप भाई, बात तो सही है. हमारे जैसे निवेशक भी इन हेल्थ केयर कंपनियों के शेयरों में निवेश कर पैसा कमा सकते हैं. આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો. એટલું જ નહીં, મની9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.